Saudi Arabia is building the largest healthcare system in its history. New hospitals, new medical cities, thousands of positions open now. But there is one thing standing between you and that opportunity, the SCFHS license. Most IMD doctors either do not know what it is or they start the process wrong and lose months. This playbook gives you the complete picture: eligibility, documents, exam, timeline, and the mistakes that cost doctors 3 to 6 months. Assalamu alaikum. I am Professor Dr. Tazeem Shahbaz, Dean and HOD of Community Medicine and Public Health. Let's get straight into it. But before we get into how to get this license, you need to understand why Saudi Arabia system is actually simpler than you think in the next slide. If you have looked at the UAE, you know the frustration. तीन bodies हैं, तीन different licenses हैं, DHA for the Dubai, DOH for Abu Dhabi, MOH for everywhere else. On the other hand, अगर आप सऊदी अरब को देखें तो completely different scenario है. One body, one exam, one license, valid everywhere. रियाज में जाएं, जद्दा, दमाम, मक्का या किसी और शहर में, you do not have to pick your city before you begin. और ये एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है. इसका मतलब ये है कि यू अप्लाई वंस, पास वंस एंड योर जॉब सर्च कवर्स द एंटायर किंगडम. अब जबकि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि सऊदी लाइसेंस क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर यू एक्चुअली एलिजिबल. बट बिफोर दैट you have to know that there are 4 specific requirements and missing even one stop your application before it starts. There are the 4 pillars of eligibility and you need all 4 of these before you can even open your license account. Pillar 1 क्या है कि आपकी जो MBBS डिग्री है it should be recognized by PMDC और NMC जो इंडियन के लिए है या किसी भी मुल्क की जो उसकी अपनी बॉडी है उसे रिकग्नाइज होनी चाहिए. पिलर 2 ये है कि आपकी इंटर्नशिप 1 फुल ईयर ऑफ क्लिनिकल इंटर्नशिप पोस्ट MBBS जो है वो होनी चाहिए और दिस इज नॉन नेगोशिएबल. No internship certificate means no application. पिलर 3 है एक्टिव रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए PMDC के साथ, एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए. पिलर 4 है कि आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी होम काउंसिल से, जैसे हमारे पाकिस्तान में PMDC से या NMC में से जो इंडिया का है. If you have all 4, you are eligible. Write this down now. Good. You are eligible. Now comes the part where most applications get delayed. Not because of the exam, but because of paperwork. The document checklist is next. Secure these 8 items before you create your SCFHS account. 1. Valid passport, minimum 6 months validity. 2. Medical degree certificate, formally attested. 3. Official transcript from your university. 4. Internship certificate, formally attested. 5. Active home consul registration, PMDC or NMC. 6. Good standing certificate from your home consul. 7. Experience letters required only if you have postgraduate work history. 8. Passport photograph white background के साथ और standard size में. यहाँ पे the word attested is critical. Every document from your home country must pass through 2 levels of attestation and I am covering that in the very next slide. डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लेना एक इजी पार्ट है, लेकिन उनको अटेस्ट करेक्टली करवाना जो है ये वो जगह है जहाँ पे आके एप्लीकेशन फॉरन रिजेक्ट हो जाती हैं. द अटेस्टेशन प्रोसेस हैज 2 मैंडेटरी गेट एंड स्किपिंग ईदर वन मींस योर एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड outright. This is the number 1 cause of application rejection: incomplete attestation. Every document from your home country must pass through 2 gates before SCFHS will accept it. Gate 1 है provisional government attestation, आपकी local verification. आप इसको बाईपास नहीं कर सकते. Then comes gate 2 MOFA attestation जो कि Ministry of Affairs Foreign Affairs of your home country करता है. जब मोफा स्टैम्प कर देता है आपके डॉक्यूमेंट को तभी सऊदी अरेबिया उनको वैलिड कंसीडर करता है. बोथ गेट्स एवरी डॉक्यूमेंट नो एक्सेप्शन. इस प्रोसेस को इमीडिएटली स्टार्ट कर दें क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में ये दोनों स्टैम्प कराने के लिए आपको 4 से 8 हफ्ते तक लग जाते हैं. डू नॉट वेट अंटिल योर एग्जाम इज बुक्ड. अब आपको पता चल गया है क्या तैयार करना है, कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो एग्जाम क्या है जिसके लिए आप बैठ रहे हैं. तो वो एग्जाम प्रोमेट्रिक एग्जाम है. Let me break down exactly what the exam looks like and why most IMGs are actually overestimating how hard it is.
द SCFHS जो है वो एक प्रोमेटिक कंप्यूटर बेस्ड MCQ एग्जाम है जो कि स्पेसिफिक स्पेशलिटी क्लासिफिकेशन के मुताबिक बनाया जाता है। इसमें 100 से 120 क्वेश्चन आते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलिटी। टारगेट इनका पासिंग है 60 to 65%। एवरेज जो सीरियस प्रिपरेशन है इसमें 3 से 5 महीने लग सकते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो यू कैन टेक विद इन 90 डेज अनदर एग्जाम, और लाइफ टाइम में कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी अटेम्प्ट इस एग्जाम की कर सकते हैं। टू थिंग्स वर्थ हाईलाइटिंग, पहला ये है कि अनलाइक प्लैब 2 जिसके लिए फिजिकली ट्रैवल यू करना पड़ता है, यू कैन सेट द SCFHS प्रोमेट्रिक लोकली। टेस्ट सेंटर अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। सेकेंडली ये एग्जाम जनरली कंसिडर किया जाता है लेस कम्प्लेक्स दैन USMLE स्टेप 1, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ट्रीट करें। यूज ऑफिशियल SCFHS ब्लूप्रिंट्स एंड प्रोमेट्रिक प्रिपरेशन गाइड्स। अब आपको एग्जाम का पता चल गया कि एग्जाम क्या है, बट देयर इज द प्रोसेस रनिंग इन द बैकग्राउंड जो कि 8 से 14 हफ्ते भी लग सकते हैं, जिसमें इसे रश नहीं किया जा सकता, एक्सपेडाइट नहीं किया जा सकता, और ना ही इस प्रोसेस को बाईपास किया जा सकता है। और अगर आपने इसे इमीडिएटली स्टार्ट ना किया तो इट कैन डिले योर लाइसेंस बाय मंथ्स। ये प्रोसेस है डाटा फ्लो एंड इट इज नेक्स्ट। Data flow is a third-party primary source verification service. SCFHS uses it to verify your credential, not from the documents you upload, but directly from the source. डाटा फ्लो करता क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली कॉन्टैक्ट करता है आपकी यूनिवर्सिटी को, आपकी मेडिकल काउंसिल को, आपके पास एम्प्लॉयर्स को, और वेरीफाई करता है आपकी डिग्री, आपकी रजिस्ट्रेशन और आपके वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन से। और यहाँ क्रिटिकल वार्निंग ये है कि ये प्रोसेस लेता है 8 से 14 वीक्स ऑन एन एवरेज, और इसे रश नहीं किया जा सकता, एक्सपेडाइट नहीं किया जा सकता, बाईपास नहीं किया जा सकता, और देयर इज नो फास्ट ट्रैक ऑप्शन। दिस इज व्हाई यू स्टार्ट डाटा फ्लो ऑन डे 1। इसको आपने एग्जाम पास करने के बाद शुरू नहीं करना है। जब जब आपका डाटा फ्लो उधर से हो रहा है और साथ साथ आप स्टडी करेंगे, these two tracks run simultaneously. Now I want to show you exactly कि आप इन दोनों ट्रैक्स, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, दूसरा एग्जाम प्रिपरेशन है, एक ही साथ लेके कैसे चल सकते हैं, because the doctor who finish in 6 months do something very specific that others do not. This is the strategy that separates 6 month timeline from a 12 months one. ट्रैक एक पहले डिस्कस कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मंथ 1 और 2 में आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, उनको टेस्ट कराते हैं। मंथ 2 ऑनवर्ड डाटा फ्लो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि रन करता रहता है 8 to 12 वीक्स के बीच में। ट्रैक बी जो है वो एकेडमिक डिस्कस करें तो मंथ 3 ऑनवर्ड प्रोमेट्रिक एग्जाम की आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे इन पैरेलल विद डाटा फ्लो। मंथ 4 और 5 में एग्जाम के लिए बैठेंगे और मंथ 6 to 7 में आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। यहाँ पे की इंसाइट क्या है कि डॉक्टर जो लाइसेंस 6 मंथ्स में लेते हैं वो डे 1 से जो है डाटा फ्लो का प्रोसेस शुरू कर देते हैं इन लाइन विद द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। Even with the right strategy, 3 specific mistakes derail more SCFHS application than anything else. Each one is avoidable, but each one costs 3 to 6 months if you make it. We discuss in next slide. 3 mistakes, each one avoidable, each one expensive. Mistake 1 क्या है? The sequence error. हम वेट करते हैं डाटा फ्लो का प्रोसेस फिनिश हो जाए तो फिर एग्जाम की तैयारी करें, और ये हमारे तकरीबन 14 वीक वेस्ट हो जाते हैं। फिक्स कैसे करना है कि हमने दोनों जो चीज़ें हैं साइमल्टेनियसली शुरू कर देनी है, प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम भी और डाटा फ्लो प्रोसेस भी। मिस्टेक 2 है द अटेस्टेशन फेलियर, सबमिटिंग डॉक्यूमेंट विद ओनली 1 लेवल ऑफ वेरिफिकेशन। जब हम फर्स्ट टाइम मिस कर देते हैं तो हमारी आउटराइट रिजेक्शन आ जाती है। फिक्स कैसे करना है कि हमने दोनों अटेस्टेशन, प्रोविंशियल्स भी और मोफा अटेस्टेशन भी दोनों करानी है, नो एक्सेप्शंस। मिस्टेक 3 है क्लासिफिकेशन मिसमैच, ये बहुत 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 लोग करते हैं। अज्यूमिंग योर स्पेशलिटी कैटेगरी एंड अप्लाइंग फॉर द रॉन्ग प्रोमेट्रिक एग्जाम, दिस रीस्टार्ट्स द होल प्रोसेस कॉस्टिंग यू 3 to 6 एडिशनल मंथ्स। फिक्स इसका क्या है कि हमेशा क्रॉस रेफरेंस करें अपनी स्पेशलिटी और एक्सपीरियंस लेवल को विद द ऑफिशियल SCFHS क्लासिफिकेशन टेबल बिफोर अप्लाइंग। नाउ यू नो all 3, do not repeat them.
You have the complete playbook, one slide left, your deployment order, what to do today in this order. Vision 2030 is not slowing down, the infrastructure is built, the positions are open, the licensing process is a solvable equation. Your three actions in order. Action 1, verify eligibility, comment your current hospital name and your exact specialty below. I will personally give you a SCFHS eligibility check and confirm your pragmatic exam. Category. Action 2, deploy the network. Share this video with one peer who is currently considering Saudi Arabia. Action 3, subscribe to Global Medical Career Mentor for weekly career breakdown covering the UK, Gulf, Australia, USA and beyond. The doctors who succeed in Saudi Arabia are the one who master the timeline on day one. You have the playbook, start today. See you in the next video. Allah Hafiz.